गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी ना, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? फील्ड के बारे में बहुत ही क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिव स्टडी कर रहे हैं। राइट? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हम जो सोर्स चार्जेस है ना हमारे पास, वो कैसे हो रहे हैं, बहुत चेंजेस हो रहे हैं उसमें। राइट? कभी रिंग आ जा रही है, कभी लॉन्ग वायर है, कभी पॉइंट पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है हमारे सिस्टम में। हम कलेक्टिवली क्या करना चाह रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे फील्ड को समझना चाह रहे हैं कि वहाँ वैल्यू जो है फील्ड की कितनी आ रही है, ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सके कि फोर्स जैसे क्वांटिटी क्या होंगे वहां पे। समझ रहे हो आप? तो इस चीजों के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, कोई भी ऐसा नहीं मतलब ऐसा कोई भी सोर्स एलिमेंट नहीं है जो कि आप देखोगे कि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है ना? ऐसा तो कुछ मैंने एक सिर्फ एक सेक्टर वाला छोड़ के मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स जो होते हैं ये आपको है। लेकिन आपको एक बात फील हो रहा है क्या कि अगर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो आप जब बोर्ड्स के भी कर रहे हो क्वेश्चंस, तो आपको हेल्प मिल रहा है विजुअलाइजेशन में? ऐसा हो रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है? सब बन रहा है, हेल्प हो रही है। हेल्प हो रही है ना? अगर मैं एनिमेशंस का यूज कर रहा हूँ या कुछ ऐसा चीजें यूज कर रहा हूँ, तो आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प आ रहा है ना? क्योंकि आप जो टेक्स्ट में देखोगे ना, टेक्स्ट बहुत ही मतलब एनिमेशंस और टेक्स्ट में ये डिफरेंस होता है कि थोड़ा वो ब्लंट होता है। राइट? ब्लंट इन द सेंस कि बहुत चीजों को स्ट्रेट बोल के चला जाता है, लेकिन उसका बहुत डीप इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so today we will start with the field lines. Okay, so as I told you that time, in the very beginning when we started about reading about the electric field, we defined it as a ratio of what? The force on the test charge particle divided by the charge over that test charge. Right? And we call it a field strength at that point, right? Where that test charge is existing. Okay, now I told you that time that we have a certain different definition also of the electric field intensity, right? And that time I told you that have a like glimpse of this one, a small glimpse of like what is something, a line is which is what originating and terminating at certain points. So I told you that there are we call it a field lines, and I told you that time that we will do it in later later classes, because that time I told you the field strength at any point, that means the electric field intensity at any point, as how I was describing it, as force by q naught. Right? Now I will there is one more way of describing it that we will see tomorrow. But before that, let me tell you what is field lines. So originally, what was the concept? That Faraday introduced this concept as an imaginary line. Okay, as an imaginary line. Why it is an imaginary line? Because we draw something like, right, and we are getting some interpretation from there, but these were not, this is something which is cannot be perceived directly by the humans. You cannot see that, you can perceive like something field strength at any point in terms of force, right? But you cannot perceive it directly, where it is, how much it is producing or not. But that time I was saying to you that this is something is a property of a source charge. And it is like that time it was a concept which was like ki Faraday saab introduced kiye the, so it was uh, a hypothetical concept, something which can help us to explain something, right? But it was not having a physical significance that time. Now when we studied the things, and we came from a certain area where like we started about pondering about what, uh,
abstract quantities, how they are building up everything, right? आपको याद है ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम लोग कैसे अब बोलने की कोशिश करते हैं जब हम फर्दर अगर हम एडवांस वर्जन में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली क्या होता है बिकॉज ऑफ द मास जो स्पेस टाइम का जो एक फैब्रिक है वो क्या हो जा रहा है बेंट हो जा रहा है राइट व्हाट यू सी दैट सपोज दिस इज अ सम फैब्रिक suppose I am saying to you that I am assuming that space time yeah what I am saying to you that suppose this is a space time fabric assume it like this is a kind of fabric I am trying to say this is something fabric like this okay and there is no mass over here right there is no mass over here but what is happening when there is some mass is like So screen share हुई है. अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रखा है now you can see right Yes sir. so what I was trying to say that when there is a certain mass over here what is it is doing it is bending this fabric right it is bending these kinds of fabric and this goes like this so this fabric which was earlier like a plain fabric now it has bent why it has bent because of the presence of the mass so when we are moving ahead we are what we are realizing that these are not an imaginary concepts right these has some physical significance over there means that is there is also a propagation of these fields everything is like just like we talk about the propagation or a motion of a particle right we call it like there is a particle at certain position and it is changing the position with respect to time and we talk about the certain parameters like velocity acceleration the force on that particle and we will see that thing that these things are can be perceived directly right I can see that something is moving very fast right you can say that you are moving fastly and you are moving slowly compared when we are just like comparing the two person right so these have you can perceive it directly right correct but how can you perceive the field how can you say that this something which is like originating from the positive charge a line which is originating from the positive charge you cannot see right you cannot see that like okay there is a like this is charge over there and there in certain reason we have a field like this so initially it was started as a hypothetical concept an abstract concept which help us to conclude certain things which help us to explain certain things right and help us in kind of modeling the things but after a while what we concluded that no this is something which is there is an existence of it and this is called we call it as ELOF electric field lines of forces okay so we call it this is the acronym that we will use it right and what is the full form of this acronym this Electric is lines of force, field of lines. electric field lines of force so why I'm calling it like I'll explain it to you right what is we are doing we are not how we are making this field lines
for a certain, like this is like I told you in the very beginning, what is the scenario over here when this is radially outward, coming radially outward, when there is only this positive charge is existing in this universe, right? That means these two are depicting two different system, right? Two different universe, you can say that. Okay, so in universe one, what we have only this positive charge. And how will be the field lines over there? Is it would be like that something, the lines means which call something as lines that are originating from these positive source charge. And how it is like emerging or originating, they are originating like radially outwards. When we talk about a universe where there is only a negative charge, that is that the negative charge, which type of charge it is? Point charge. So it is like feeling like we are getting a field lines like something which is like terminating at a certain point from every direction. From every direction, some is terminating over there. And what is that point where it is terminating? The point where the negative charge is kept. Okay, that's why I told you, like if I ask you that they in the universe where there is both things are existing, like positive, this one as positive and this one as negative, both are existing, so we will not get a field like this one field. Okay, field lines, we will not get the field lines like this one. We have like studied it, like I'll explain it to you also, that this will like what will happen, that this lines originate, okay, the field lines originate from the positive charge. This is true in every cases. The negative charge is there and it will like field lines what terminate at the negative point. This is also true for the every cases, but this will, here the field lines look like this. Right? And how this is positive, so it is originating from there. Not all the field lines which are originating from this positive charge will end at this negative charge. Some will escape to the infinity. And some lines which is coming from the infinity come here and terminate over here. So do you understand that when these two charges, suppose that we have an equal in magnitude, they are equal in magnitude, but they are only different in what type of charges? One is positive and one is negative. So in this one, we will get a field lines, okay, in this kind of way, right? I'll explain it to you why we are getting this kind of like field lines. Why not we are getting a like this kind of field lines, right? So in the first view, like how we have to draw this kind of field lines. The first purpose of this of all of us is to find out why we are like able to draw like this kind of field lines. How we understand that this is the field lines? Why don't we make a field lines like this? Like we have you seen in the in magnetic field a straight wire which is carrying a current I? So what kind of field lines over there you have studied over there? Something which is concentric circles, a set of all concentric circle whose center will lie over this wire. So you call it like this. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. And we are getting the, why don't we get the same kind of P lines over here? So we have to understand that how this is something which is related and how we can originally understand that how we can draw these field lines. So for that, let's do one thing. Okay, I'll take one blank slide over here. Explain.
So what we are going to do here, we understand what is the field lines. Okay, this will explain you, right? Not even, not it will help you in this electrostatic portion only. It will help you in drawing the field lines of gravitational, like we call it gravitational field lines, we call it magnetic field lines, right? It will help you everywhere because the fundamental concept is same for everything. That how we will do it. Now I ask you, like, there is something like I call it a charge, source charge. This is a point source charge. Okay, so I'll ask you to, if I'll bring a test charge over here. So I'm bringing a test charge over here. Now this is, I'll assume the charge over the source charge is capital Q, and this is the over the test particle is Q naught. Now if I'll ask you what is the force over this particle, that means the force, I call it, suppose this is the source one, source charge particle. So I call it S, and this is, I call it T. Right. So I ask you the force on T due to S. So how you will say that thing? You will say that K Q naught by R TS mod whole square R vector TS. Do you remember this formula? से क्यूब होगा नीचे. Q, no. I'm asking about the force, not the field. The field described means field at point T due to S, we call it right. Or I am writing something wrong. Okay, you are saying this one is Q. Yes, sir. Remember one thing, this is I am writing here in terms of unit vector. When I will write it in the terms of Q, let me go back to that slide and this was Q when it was Q, when it was here, this is, I'm not writing in down in terms of unit vector. Yes, sir. Do you remember this formula? One second, where is the complete formula in terms of this? Yeah. So you see this thing where when there is Q over there, when there is a Q, when I am writing over here as a vector, R vector, right? But what I am saying, this R vector, if I'll write down this R vector, this, yeah. When I'm saying to you, let's not see this way. I'm saying to you R vector, what is this one? R21. When I divide it with the magnitude of R21, what I am getting it over there, what I will get, what this ratio will give me, like what ratio, what kind of value will it give when we take this ratio, the vector divided by its magnitude, it will give you cap, R cap 21, right? That's why I was writing down what I was writing down, this is square. What I was doing, this was a square, and one value I was taking out of this, and over there is a vector. So this whole value is changing into a unit vector, right? So you will write it as Q when you will write in terms of the R vector. But when you want to write in terms of R cap, you will not write cube but square. And always remember,
Always remember, don't think that Coulomb's law, when they will ask you that Coulomb's law is inversely proportional to the square of distance. Okay, we will always see this formula, not in this way. You will say that okay, by this formula actually the electrostatic force, which is an interactional force, which is like this test charge is like experiencing over there because of the source charge, and you cannot say that it is inversely proportional to the cube of the distance between them. No. This thing I told you, like this thing is further like modified into terms of r cap. Why I am writing it r cap? Because this is purely about the direction. What is the magnitude of r cap? What is the magnitude of this value? This is always 1 unit. That's why I call it unit vector. Na? So what is the purpose of the unit vector? The purpose of the unit vector is just to give us the idea of the direction at that point. Direction of what? The certain physical quantity, which is a vector quantity. And vector quantity can completely be specified when we know the magnitude and the direction at that point. Do you understand my point? Yes, sir. So, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा ऐसे टाइप में तो पूछना, मैं पीछे जाके रिकॉल करवा के आपको हेल्प कर दूंगा कि इस चीज को आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? बट हेजिटेट मत करना कोई भी, ठीक है? So we were doing one activity that we were trying to find out the field lines. So I asked you that if I'll have to find out the force on this test charge, then I'll write in this terms. Okay, so what is the direction over here that we are getting it? What is the direction? This is RTS. What is this one? This is something which is saying it is radially outward. What is this one? This one, R cap TS, is something which is, if I join this line, then this arrow, the direction of this arrow is actually what is it? The direction of this arrow is R cap TS. Right, that's why I told you, like, yaad karo us samay, when I was explaining you in terms of like a generic frame, right? I don't say that what is happening over here, like we are assuming like this, that this source charge is at the origin of a certain frame. Okay, let's draw a frame over here. Right. So what we are doing, that we are assuming this source charge at the origin of this frame, and we are calculating the force on the test particle at certain point with respect to this origin, right? But I told you that in the very beginning we derived it not for this frame only, but from any frame. Like suppose from any frame you want to draw, right? Do you remember we did it like this? From this frame, how we have explained it to you, that this is certain R1. We call it R1, right? And we were calling this 2 as R2. Right. Here, what we were saying, like R1 and R2. And what I was saying, the distance, how you will get it like this? How you will get it like this arrow? How you will get this arrow? I told you where the point, this arrow, the arrowhead of this vector
Okay, so where it is falling, this is falling on q naught. And what is the position vector of q naught in the universal frame? I can say this. So here this is R2. And where is the tail which is falling over the position of the source particle? So I tell it like, always say like think like this one. That's if I have to draw an arrow which is like, who's like this point, this which is the tail of this arrow, which is like certain, this position vector means the tail, this tail of this arrow has the position vector R1. Okay, and this one has position vector R2. So I can get this vector, right? How I can get it? Like जो head जहां पे पड़ रहा है minus tail. याद है मैंने उस समय कहा था, ये चीज याद है कि Yes, sir. अगर ये चीज हमेशा याद रखना कि ये चीज ऐसे याद रखना कि अगर आपको ऐसे दो वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर दे रखा है, मैं आपको पूछूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, मैं बोलूं कि ये एक वेक्टर रहा सी वेक्टर, सी वेक्टर को लिखो ए और बी के टर्म्स में, कैसे लिखोगे? B vector minus A vector. सी वेक्टर को आपने बोला लिखा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना चाहिए? A vector minus B vector. समझ में आ रहा है क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो जहां पड़ रहा है, जहां पे इसका हेड पड़ रहा है, इसको पहले लिखेंगे, जहां टेल पड़ रहा है उस मतलब इस वेक्टर, ये जो यहां से जो ये ए वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, किस किस पॉइंट का, ये दो पॉइंट का। अब यहां से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी तो एक पोजीशन वेक्टर होगा। ये कैसा पोजीशन वेक्टर होगा? जब हम ये वाला पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, टेल यहाँ पे हमेशा ओरिजिन पे रख रहे हैं और हेड कहाँ पे रख रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे जहां पे मुझे जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, राइट? तो इसको हम क्या कह रहे हैं, R1, ठीक है। हो क्या रहा है, अगर इसको भी ऐसे सोचे तो देखो ये R1 इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आ रहा है, R1 इसका आ रहा है ना, ठीक है। अब मान लो कि इसका R2 आ रहा है इस पॉइंट का, राइट? अब मैं बोलूं कि ये मुझे एक वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे जब आपके पास R1 और R2 दे रखा है? ये भी तो एक पोजीशन वेक्टर होगा, लेकिन किस टाइप का पोजीशन वेक्टर होगा? ये ऑरिजिन से नहीं होगा, ये ऑरिजिन से नहीं नापा जा रहा है, इसका ये इनिशियल पॉइंट से नापा जा रहा है, जहां से ये स्टार्ट किया है और जहां जहां के एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, जहां जाके टर्मिनेट हो रहा है, जहां जाके टर्मिनेट हो रहा है वहां पे क्या लिखा है उसको, तो वहां से ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, यानी फाइनल का ये हो गया तुम्हारा। अगर मान लो किसी ने अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट समझ लो, आपने पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, इसको आई वेक्टर मानते हैं, फाइनली वो बंदा क्या किया, इस पोजीशन से स्टार्ट किया और यहां तक गया, इसको एफ वेक्टर मानते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यानी हम कहेंगे कि इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो इसको एक एरो बनाते हैं, ठीक है। तो एरो का हेड यहां पे पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे एफ माइनस आई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इस वेक्टर का नाम क्या हम दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नाम दे रहे हैं, राइट? तो सेम इस चीजों को अगर मैं बोलूं कि अगर मैं जेनरिक फ्रेम में भी लिख रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ये देखो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, और उसी के अलोंग क्या होगा, उसी के अलोंग क्या होगा, उसका आर कैप हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे अगर जैसे भी जिस पॉइंट को जो लिखूं, अगर इस सोर्स चार्ज को मानते हुए, तो इसका जो लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है इस पॉइंट पे, इसी के अलोंग हमेशा वो वेक्टर का डायरेक्शन आ रहा है फोर्स का। अगर यहाँ पे मैं क्यू नॉट को ला के रख देता हूं, तो अगर मैं यहाँ क्यू नॉट लाऊंगा तो कैसे निकालोगे इसे फोर्स, कहोगे कि अच्छा इसको ज्वाइन करो,
और इसी के अलॉन्ग हो जाएगा इसका फोर्स, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं कि वो जो फोर्स हो रहा है, ये तो फोर्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसको Q0 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, E आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। इस चीज से क्या, कोई Q0 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या F के डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा, बताओ। अगर मैं किसी स्केलर को अगर मान लो कि अगर मैं स्केलर को, अगर ये रहता है, सॉरी वेक्टर को, इसको मैं बोलता हूँ वेक्टर क्वांटिटी v, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाता है, उसके डायरेक्शन में तो कुछ चेंज लाता नहीं है, राइट। यस सर। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है ना। तो इसका अर्थ क्या मैं बोल रहा हूँ, और Q0 कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने टेस्ट पार्टिकल का कंडीशन क्या बताया था, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, ना इंडक्टिव इफेक्ट काम कर पाए, ना कि वो अपना फील्ड प्रोड्यूस कर पाए, और साथ में हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और प्लस वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ये सारे कंडीशंस लगाए थे। तो अगर Q0 हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मतलब एक प्रकार से 1/Q0 हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ, तो वो जो डायरेक्शन होगा, ई का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, एफ के डायरेक्शन के बराबर ही होगा, राइट। यानी यहां पे मैं जितने भी, यहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ला रहा हूं, तो ई कैसा आ रहा है, इस पॉइंट को ज्वाइन किया और ये लग रहा है कि यह बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर हर छोटे छोटे पॉइंट पे अगर मैं बात करना स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे लाता हूँ, 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 तो सारे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड। इन सबको ज्वाइन करूंगा तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। यस सर। तो यानी हम जो फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है जो हम बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हमें फील्ड लाइंस का जब हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम कर रहे हैं कि हम वहां पे जो किसी पॉइंट है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सिर्फ डायरेक्शन से हमको मैटर कर रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्शन अभी इंपॉर्टेंट है, उसके मैग्नीट्यूड से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, उसका लेंथ कुछ भी आ जाएगा। मान लो उस एरो का अगर मान लो कि ज्यादा अगर होगा तो लंबा होगा, लेंथ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एरो, लेकिन डायरेक्शन के बारे में मुझे अभी जानने की कोशिश करना है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन के थ्रू हम लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस पॉइंट पे मैं अगर सारे का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करने लगूं, यहाँ पे अगर फील्ड का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करने लगूं, तो कैसा कैसा टाइप का आएगा, ऐसा, इस पॉइंट पे ये रहेगा, इस पॉइंट पे ये रहेगा, इस पॉइंट पे ये रहेगा, रहेगा कि नहीं, इस टाइप का बनेगा कि नहीं सारी जगह पे। अगर मतलब पॉइंट पे, इस पोजीशन पे मैं सोर्स, ये टेस्ट चार्ज लाता हूँ उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसको फिर क्या करता हूँ, उसके चार्ज वैल्यू यानी Q0 से मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, तो E आता है, और E के सिर्फ डायरेक्शन को मैं देखता हूँ, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को, उसके डायरेक्शन को देखता हूँ। तो उससे जो डायरेक्शंस जो कंटिन्यूअसली इस लाइन पे बनते जा रही है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, सबको एक साथ ला देता हूँ, तो वो क्या मुझे बता दे रही है, फील्ड लाइंस। अब मैं पूछता हूं कि ये जो लोग फील्ड लाइंस आ रही है, और यहाँ पे जो पॉइंट का जो इस फील्ड लाइंस, अगर मान लो कि फील्ड लाइंस किस में होगी, स्पेस में होगी, राइट। तो अगर मैं इस पोजीशन पे पूछूं, इस पोजीशन पे पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो कि इसको पॉइंट ए कहता हूं, तो पॉइंट ए पे पूछता हूं मुझे मालूम है कि पॉइंट ए से मतलब ये फील्ड लाइंस ऐसा दिख रहा है, मुझे मालूम मालूम ऐसा अज्यूम करो कि आपको दे रखा है कि फील्ड लाइंस आपको ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हमने जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, उसका डायरेक्शन कैसा बनेगा, वो हमेशा टेंजेंट टू दिस लाइन बनेगा। इसमें आपको लग रहा है क्या कि ये टेंजेंट टू द वो लाइन है, लग रहा है क्या,
मतलब अगर मैं आपको बोलूं सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे तो आपको लगता है कि एक पॉइंट, एक लाइन जो उसको जस्ट टच करते हुए निकल रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो कैसे ड्रॉ करोगे बताओ। अगर मैं बोलूं कि एक सर्टेन कर्व है ऐसा, तो मैं बोलूं कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप क्या कहोगे कि सर देखो ऐसा कुछ टाइप का लगेगा, जस्ट टच करते हुए निकल जाए, राइट। इसकी फीलिंग आ रही है आपको, जस्ट टच करते हुए निकल जाए। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे ही बात करूं, स्ट्रेट लाइन पे इस पॉइंट पे मैं बोलूं टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, कैसे ड्रॉ करूंगा, कोई आइडिया। बताओ कोई आइडिया। सर रिपीट करना। क्या रिपीट करना। मैं बोल रहा हूँ कि सॉरी, आपको सर्कल पे मैं बोलूं कि सर्कल एक आपको दे रखा है, तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोलता हूँ, तो आप क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे जो जस्ट टच करते हुए जाएगा, ठीक है, राइट। यस अब सर। मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, सर्कल की जगह एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इस पॉइंट पे मैंने पूछा था कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे अगर मैं बोल रहा हूँ, इस पर इसको मैं बी बोल रहा हूँ, तो बी पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, कैसा होगा वो टेंजेंट होगा कैसा, स्ट्रेट लाइन पे। आपके पास जो कर्व दिया हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन है। जब आपके पास एक कर्व दिया होता है सर्कल, तो आप इजीली से किसी उस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। लेकिन आपके पास इस बार कर्व कैसा दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, और उसके एक कोई पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ कि इसका टेंजेंट ड्रॉ कर। इसका टेंजेंट पता है क्या होगा, इसी के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसी के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका टेंजेंट हमेशा इसी के साथ रहेगा, हर का टेंजेंट इसी के लाइन के ऊपर आ रहा है। तभी तो मैं बोल रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फील्ड लाइन देखो यहाँ आई, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये आ रही है, इस पॉइंट पे ये आ रहा है। मान लो कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स निकाले हैं सब पे आपने निकाला, तो क्या होना चाहिए, वो यस सर। फील्ड लाइंस क्या होने चाहिए, टेंजेंशियल टू दैट, जो सॉरी फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पे आपने निकाला, मान लो कि इस पॉइंट पे आपने निकाला, ठीक है, इस पॉइंट पे निकाला, फिर इसके नियर बाई पॉइंट पे निकाला, ये आ रहा है, इसके नियर बाई पॉइंट पे निकाला, ये आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसा करना है कि ये चीज जो हो ना, ये ऐसा हो कि इसको ना, नहीं यहाँ पे देखो ऐसा ना कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगी ना, वो जो उस पॉइंट पे, अगर किसी फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे मैं जाता हूँ, मान लो कि फील्ड लाइंस आपके पास कैसी भी टाइप का शेप का हो, ठीक है, अगर उसके मान लो कि ऐसा हो, ये रहा फील्ड लाइंस, ऐसे मान लो आपके पास फील्ड लाइंस ऐसे होगा, तो यहाँ पे मैं जब इस जगह पे मैं बात करूंगा, उस फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे मैं बात करूंगा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस फील्ड लाइंस के टेंजेंट के अबाउट होगा, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं, ये देखो आपने जो ये निकाला है फील्ड लाइंस, तो अगर मैं इस पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, वो फील्ड लाइंस का हमेशा क्या होगा, ये फील्ड लाइंस जो बनेगा, ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, और इस पॉइंट पे हमने इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट ए पे, उसका अगर मैं बोलूं, और ये जो फील्ड लाइंस है इनके बीच में यही रिलेशन होगा कि जो वहां पे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, उस फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल होगा, ठीक है। यस सर। ये बात समझ में आ गया ना, कि यस Yes, sir. सर। आपको हार्डली ऐसे ऐसे ड्रॉ करने के लिए नहीं बताया जाएगा कि कैसे आपको ड्रॉ करना होगा, आपको एक इंट्यूटिव फीलिंग में बता रहा हूँ
इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होता है। इवन आपको मैं बोलूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में आपको पहले से मैं इन्फॉर्म करूंगा, आप कहोगे ना वी नो दिस थिंग, कैसे आपको मालूम है? वी नो बिकॉज लाइक हाँ, कुछ कंक्लूजन्स हम जो क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्टली अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे समझने के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट होगा जो वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट किया, कैसे इसको प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। फील्ड लाइंस में क्या होता है कि फील्ड लाइंस आपको ऐसे अब अज्यूम करना है कि आपको मालूम रहेगा कि इसका फील्ड लाइंस ऐसा ऐसा होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज आपको कुछ कुछ ऐसा है, आपको मालूम चल जाएगा कि आपको उससे अगर मान लो कि कोई एक आर्बिट्री शेप का भी अगर चार्ज आ जाता है ना, उसके कारण भी जो फील्ड लाइंस ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, वो आप बता सकते हो। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो यहां से अगर मैं देखूं, अब सिंपल सी चीजें स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में जितने भी आते हैं, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ELOF, जो फील्ड लाइंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इसको ऐसे भी कहते हैं, फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स? क्योंकि हमने जो जहां पे हर जगह पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला, टेस्ट चार्ज के हेल्प से, और टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या निकालते थे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये फील्ड लाइंस आ कैसे रहे, उस टेस्ट चार्ज के हेल्प से। हर जगह पे देखो, इस पॉइंट पे क्या किया, अगर मान लो कि अब देखो, आपको मैंने बोला था ना कि यूनिवर्स में अगर आपके पास दो पार्टिकल है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सेम इन मैग्नीट्यूड है, तो इस टाइप का फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई मैंने स्पेसिफिक फील्ड लाइंस को ले लिया, इसको ले लिया, इसको नाम नेमिंग कर देते 1। ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है कि इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे देखो, इसके कारण क्या होगा फील्ड लाइंस। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को देखूं, तो पॉजिटिव चार्ज कैसा बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज से। यानी इसको क्या मैं बोलूं, ई एट ए ड्यू टू, इसको क्या कहता हूं मैं, मान लेता हूं इसको मान लेता हूं अल्फा, इसको बीटा मान लेता हूं, क्योंकि मैंने 1 इसको लाइन को बोल दिया। ठीक है, तो ई एट ए ड्यू टू अल्फा ये आएगा, ये बोलेगा कि मैं तो अपना प्रोड्यूस करूंगा भैया, और ये जो प्रोड्यूस करेगा क्या होगा, रेडियली इनवर्ट। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, राइट। और ये वाला क्या आएगा, ये आएगा ई एट ए ड्यू टू बीटा। अब देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा यहाँ पे कुछ ऐसा, ये आएगा, राइट। अब ये देखो, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट फील्ड आ रही है उस पॉइंट पे, ड्यू टू ऑल, मतलब ड्यू टू ऑल सब सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस सिस्टम में जितने भी सब सिस्टम चार्ज ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, उनके कारण कलेक्टिवली जो फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है ए पे, वो क्या है, इस फील्ड लाइंस की कैसे है, टेंजेंशियल है कि नहीं। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो कैसा होगा बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, लैप करेगा इसके ऊपर ही। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया कि कैसे ये ओवरलैप कर जाएगा इसी के ऊपर। यस सर। एक तो पहली बात मैं अगर बोलूं तो ये देखो, ये पॉजिटिव के कारण इधर और निगेटिव के कारण भी इधर, तो समथिंग लाइक इधर ऐसा बड़ा वाला बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो, ये पी लाइन जो आपके पास दिया हुआ है ना, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते किसी भी पॉइंट पे, तो उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम एक्चुअली फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको भी नहीं करना है ये सारी चीजें। आपको एक प्रकार से याद रखना है कि फील्ड लाइंस आपके पास याद रहना चाहिए कि पॉजिटिव अगर चार्ज होगा तो उसको क्या होगा, इससे होगा कि आपके पास ऑरिजिनेट हो रहे होंगे फील्ड लाइंस कैसे, रेडियली आउटवर्ड। अगर निगेटिव होगा तो कैसा होगा, इनवर्ड्स। इनवर्ड। सब कुछ ये चीज आपको फील्ड लाइंस कैसे होंगे आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है, और ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको हेल्प करेगा समझने में। क्या मैं बोल दूं यहाँ पे, अगर ये रहा फील्ड लाइंस, ये रहा, ये वाला आपके पास आया है, राइट।
अब मैं बोलूं क्या ऐसे यहाँ पे ये फील्ड लाइन बन सकता है क्या? ऐसे लाके और ऐसे बना दूं, ऐसे मैं कह दूं ये एक बोलूं कि फील्ड लाइन है जो यहाँ पे परपेंडिकुलर की तरह बन रहा है, यानी ऐसा मैं मान लूं। ये फील्ड लाइन पॉसिबल है क्या, ऐसा फील्ड लाइन? सर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट जो फील्ड जो आ रही है इंटेंसिटी, वो क्या है? अगर मैं बोलूं नेट फील्ड इंटेंसिटी जो ये वाली है, वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। उस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, अगर हम मान लो ये पॉइंट ले रहे हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? हमेशा टेंजेंशियल होगा उसके। तो यानी ऐसी लाइन नहीं पॉसिबल है। तो आपको ये चीज हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में। समझ में आ रहा है? यस सर। और Yes, दूसरी sir. बात, क्लोज सरफेस नहीं होता है, क्लोज लूप नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है? क्लोज लूप क्यों नहीं होता भाई? ये आपने बोला कि प्लस से ऐसे है, ये निगेटिव है, यहां से आप बोल रहे ये जा रहा है, ये रहा। लग तो रहा है सर क्लोज है, यहां से गया इधर आ गया, क्लोज लग रहा नहीं है क्या? तो क्लोज क्यों नहीं बोल रहे? बीच में चार्जेस है। बीच में कहाँ चार्ज है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और माइनस चार्ज है। ये रहा, ये चार्ज है, यही देखिए। यहाँ पे ये ऊपर में ऐसे बना है, सिमेट्रिकली एक नीचे बना देंगे, तो नहीं लग रहा है कि क्लोज चार्ज बन जा रहा है, क्लोज लूप बन जा रहा है। गलत लिख दिया शायद से, है कि नहीं? अरे नहीं भैया, गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है उसने। क्यों भैया? मैंने आपको क्या बोला कि पॉजिटिव से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, तो सारे पॉजिटिव से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, जाके निगेटिव में जाके मिल रहे हैं। ये देखो ऐसे। क्या आपको लूप पे अगर चलना, इस फील्ड लाइंस पे चलना स्टार्ट करो, इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, यहाँ पे से आप फिर वापस जा सकते हो क्या पॉजिटिव पे? नो सर। तो क्या ये क्लोज लूप बन रहे हैं? नो आप एक रास्ते से एक बार निगेटिव पे पहुंच गए, फंस गए आप, उसके बाद आप नहीं जा सकते हो निगेटिव पे। तो इसी के लिए क्या कह रहे हैं, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्लोज लूप होते हैं क्या? चलो एक बार देखते हैं। बार मैग्नेट याद करो, बार मैग्नेट आपको याद है? उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने आपको क्या बोला, फील्ड लाइंस आपको याद रखने पड़ेंगे आज से। आपको मैं हेल्प कर सकता हूं कि आपको एक विजुअलाइजेशन में आपको हेल्पिंग एक हैंड मिल जाए, जिसके थ्रू आप समझ सको कि हाँ, ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, जिसको हम फील्ड लाइंस ऑफ दिस सोर्स चार्ज बोल रहे हैं या सोर्स मैग्नेट बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ रीजंस हैं। कहोगे कि यार देखो, हाँ ये इसके पास जो हर, अगर मैं इस फील्ड लाइंस की बात करूँ ना, स्पेसिफिक इस लाइन की, तो इसके कोई भी पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, वो क्या कर रही है? टेंजेंशियल आ रही है। तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये अच्छा, मतलब हाँ ठीक है, चल सकता है ये वाला चीज। लेकिन मैं बोल दूं ऐसा कोई बेतरंगा सा कोई भी ऐसा लाइन बना दिया, मैंने बोला कि ये होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेंजेंशियल होना चाहिए वहां पे। अगर देखो ऐसा फील्ड दिख रहा है कि हमारे पास जो आ रहा है वो टेंजेंशियल होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो फील्ड लाइंस कैसा होता था? ऐसे होता था क्या वहां पे? कुछ ऐसा होता था क्या? सॉरी, कुछ ऐसा होता था क्या? यस सर। लेकिन क्या अंदर में भी फील्ड फ्लो करता था? यस सर। वो कैसे कर रहा था? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यानी अगर आप किसी पॉइंट से यहाँ पे एक बार फील्ड लाइन पे बैठे, बोले कि चलो यार तुम्हारे फील्ड लाइंस के अलोंग ही हम ट्रेवल करते चलते, मैं नॉर्थ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, साउथ में चला गया। अब अंदर में मैं पहुंच गया, क्या साउथ से नॉर्थ की ओर भी लाइन जा रही है क्या?
बताओ। Yes, sir. तो यानी ये क्या कर रहा है, क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं? Yes, sir. अगर क्लोज लूप नहीं होता, मान लो क्लोज लूप नहीं होता, तो फ्री लाइंस कैसी दिखती? तब कैसी दिखती? तब कुछ ऐसी दिखती। नॉर्थ से चला, साउथ में जाके डूबा, नॉर्थ से चला, साउथ में जाके डूबा, नॉर्थ से चला, साउथ में जाके डूबा, इररेस्पेक्टिव ऑफ मीडियम बाहर से जा रहा है या अंदर से जा रहा है, सब में ऐसे जाता है। लेकिन क्या होता, सब सारे नॉर्थ से ऑरिजिनेट होते हैं, यहां पे भी नॉर्थ से ऑरिजिनेट होता, और सब जाके क्या करता, साउथ में ही डूबता। तो ये क्या क्लोज लूप बनाने देता? क्या क्लोज लूप बनाने देता ये? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, नॉर्थ से कोई भी लाइन से चल दिए, साउथ पहुंच गए, अब फिर बोल रहे हो कि साउथ से मुझे फिर नॉर्थ की ओर जाना है, तो बोल रहा है कि नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है, साउथ में तो सब आके खत्म होंगे, यहाँ पे सारी मेट्रो की लाइन खत्म हो जाएगी, यहां से कोई नहीं जाएगी मेट्रो की लाइन, वहां से जाती ही नहीं, चलती ही नहीं है। तो ऐसे अगर होते मैग्नेटिक में, तो कहते कि इसका भी क्लोज लूप नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक में होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि वहां पे हमेशा, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होता है, वो क्या होता है, वो एक क्लोज लूप फॉलो नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा श्रुति बेटा, अभी आपको आवाज आ रही है ना सही से? ठीक है बेटा, सॉरी थोड़ा मैं मैसेज लेट से देखा, ठीक है। इसके अलावा उसके दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी? देखो, ये हमेशा सिमेट्रिकल टाइप का बनाएगा। अगर पॉजिटिव है और जैसा नेगेटिव है, तो क्या हो रहा है, इस देखो, इस चीज को क्या होगा, यहां से देखो, यहां से इसमें लगेगा कि सिर्फ मिरर इमेज टाइप कहीं तो बन रहा है। इसके अबाउट भी देखोगे तो लाइंस में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहां से बोल देना कि यहां से ऐसे चल रहा है तो ये भी इसको इधर से भी चला दो। क्यों कह रहे हो कि सिमेट्रिकल होना चाहिए? ऐसा नहीं है, सिर्फ लाइंस का देखना, ये ऐसा लगेगा कि ये सिमेट्रिकल इसके अबाउट और इसके अबाउट भी। तो ये वाली चीज क्यों मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव वाले का, क्योंकि आगे हमें डाइपोल पढ़ना है। ये चीज आपको समझ में आ गया? तो डाइपोल पढ़ना है तो इसमें हेल्प करेगा। तो आज से हम अब एक काम और करेंगे कि हर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वो हम जानने के हमेशा हमेशा देखते रहेंगे, ठीक है। पॉइंट चार्जेस की पढ़ ली है, अब ये जो आने वाला आगे डाइपोल है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप शीट के बारे में पढ़ोगे, सिलेंडर, ये वायर के कारण कैसा होगा बताओ, वायर के कारण कैसा होगा, कुछ ऐसा होते जाएगा, सब रेडियली आउट, सब रेडियली आउटवर्ड, राइट। क्यों भाई? तो यहाँ पे तो आपने ही बोला था कि अगर इन्फिनाइट लॉन्ग है तो 2k अपॉन आर, आर कैप, यही तो करते थे। अगर लैम्डा निगेटिव आता था तो क्या हो जाता था, आर कैप इनवर्ड्स टाइप का बन जाता था, यानी क्या होता था, इसी के तरफ। अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम इट, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते थे, इस पॉइंट से, इस वायर से क्या, किसी पॉइंट को पहले हम ज्वाइन करेंगे, कैसे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन इस वायर के परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड काम करते रहेगा। अगर यहाँ पे ज्वाइन मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे, और इसका रेडियली आउटवर्ड होगा अगर इसका लैम्डा पॉजिटिव लैम्डा है तो ये किस टाइप का बनते जाएगा, लगेगा कि एक वायर है, वो क्या है कि एकदम उसी से सारा कुछ ऐसे निकले जा रहा है, रेडियली सारा कुछ आउटवर्ड जाया जा रहा है। समझ में आ गया? Sir. तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है, खासतौर से डाइपोल में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात होता है कि जो हमारे जो जो सरफेस होते हैं ना चार्ज पार्टिकल,
अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब भी होता है यहाँ पे, अगर इस कोई भी आर्बिट्री शेप का मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है और उसके ऊपर इसने अगर चार्ज एक्यूमुलेटेड है, अगर क्यू चार्ज एक्यूमुलेटेड है इस पे, इसने एक्वायर कर रखा है, तो ये अपने आसपास के रीजन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बात हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे क्लोज टू द सरफेस ये किस टाइप से ऑरिजिनेट होगा, यहाँ पे ऑरिजिनेट होगा कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर दिखेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. फील्ड लाइंस, ये मैं पहले बात बता दूं, इस सरफेस के जो जो चार्ज पार्टिकल है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे निकलते हुए दिखेगा। फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल ही होगा हमेशा। ठीक है, अगर मान लो कि जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा। देखो ऐसे, अगर मान लो कि ऐसे फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा होगा, समझ रहे हो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सारा कुछ ऐसे ऑरिजिनेट हो रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा एरिया लूंगा, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये ऐसे। यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहूंगा तो ऐसे। तो ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे ऑरिजिनेट हो रही होंगी, और वो सारे कैसे होंगे, यहाँ पे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर इसके, इस सरफेस के। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस कैसे होंगे, क्लोज टू द सरफेस। अगर मैं देखूं तो वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और दूसरी बात ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये फील्ड लाइंस आपको बाद में हेल्प करेगा ना, कि आप चॉइसेस के ऊपर लेते हो। मतलब आपने, अब देखो ये सारे फील्ड लाइंस है, आपने और भी हो सकते हैं ना। इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एक ऑरिजिनेट करके जा रहा होगा, फिर इसके बगल में भी लूंगा तो ये भी एक ऑरिजिनेट करके जा रहा होगा, इसके बगल में लूंगा तो फिर इतना भी ऑरिजिनेट। तो कितना लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो मैं बोलता हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने, मान लो कि अगर ये क्या किया, ये ऐसा है, 4Q है, आपने 2Q के लिए कितना लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 लिया, तो 4Q के लिए कितना लोगे आप बताओ, 12। 12 कर दोगे। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि एक्चुअली में ऐसे आपको मालूम चल रहा है कि हाँ, ये देखो, इससे आपको एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन मालूम चल रहा है कि इसका फील्ड जो होगा वो कमजोर होगा और इसका फील्ड जो होगा स्ट्रांग होगा। जितने ज्यादा लाइंस होंगे आपस में कॉम्पैक्ट होंगे। अगर यही मैं बोल दूं 100Q अगर आपको ड्रॉ करना है, तो पिक्टोरिकली आप कैसे दिखाना चाहोगे उसको, ऐसे दिखाओगे। उसका कितना होगा, अगर ये, अगर मान लो कि 100 यानी 50 गुना, तो आपको जो लाइन लिया है उसको भी 50 गुना कर दोगे, तो इसमें कैसा दिखेगा, देखो ऐसा टाइप का दिखेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा लाइन होगा। तो आपको देख के क्या लगेगा कि इसका फील्ड कैसा है, स्ट्रांग है। मालूम चल रहा है ना, ये चीजें आपको इंफॉर्मेशन मालूम चल रही है ना। यस सर। ठीक है, तो यही चीजों का अब यूज करेंगे हम फील्ड, अगर अगर हम किसी पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ अगर हमें डिफाइन करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है, तो अब फील्ड लाइंस के टर्म्स में आपको हम यहाँ पे कर रहे हैं। फील्ड लाइंस के टर्म्स में क्या करें कि अगर इस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने पास हो रहे हैं, वो उसकी फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। तो यही चीज तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने सोर्स चार्ज को जैसे जैसे बढ़ाते गया, तो उसके क्या नंबर ऑफ लाइंस क्या मैं कर रहा हूँ, उसी रेशियो से बढ़ा रहा हूँ। यानी हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक एरिया लेता हूँ, तो इससे अभी 1 पास हो रहा होगा। सेम एरिया लेता हूँ, यहाँ पे 2 पास हो रहा होगा। यहाँ पे सेम एरिया लेता हूँ तो इसमें कितने पास हो जा रहे होंगे, बहुत सारे पास हो जा रहे होंगे। यानी ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि फील्ड लाइंस अब हमें हेल्प करता है कि इस पॉइंट से या इस डिफरेंशियल एरिया से, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसका डिफरेंशियल एरिया जो होगा, उस एरिया से कितने लाइंस पास कर रहे हैं, वो उस पॉइंट्स का फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। और हमने अब फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अब इस ढंग से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके पास रहेगा।
दूसरा बात, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट प्रोपोर्शनल टू ELOF, ये तो आपको मालूम है कैसे, मैंने बोला था कि इसको देखो दोगुना कर दिया हमने, अगर यही 100 क्यू रहेगा तो उसको देखो, समझ गए आपने इसको। ये वाला पॉइंट बताओ, ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ELOF डू नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, बताओ ऐसा क्यों। दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए वहां पर। वहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन ई जो होता है कैसा ई होता है, क्या एक सोर्स चार्ज के कारण होता है क्या? जो मैं यहाँ पे ई की बात कर रहा हूँ, ये ई की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो कि इस पॉइंट पे ई होता है तो वो कैसा ई होता है, नेट ई होता है। नेट ई कैसे हम बोलते थे, निकालते थे, जितने भी है उस पॉइंट पे सारे को ऐड करते थे, है कि नहीं? सर तो यहाँ पे जो अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे कोई पे भी होगा तो ये हम ई कौन सा देखेंगे, ई नेट देखेंगे। तो ई नेट देखेंगे तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ही होगी ना, ई नेट की तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, राइट। कोई एक स्पेसिफिक वेक्टर आएगा, उसको मान लेते हैं, बोलते हैं वेक्टर ए। और इस वेक्टर ए का जो, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को हटा दें, यानी इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे जो एसोसिएटेड होगा उसके ई के साथ। तो यानी यहाँ पे दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकते हैं, कोई एक ही डायरेक्शन होगा। तो अगर अगर दो लाइंस होंगे तो वो क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स देंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भैया कि वहां पे जब स्पेसिफिक वेक्टर वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। वहां पे हम ई के बारे में जब बात करते हैं तो एक सोर्स चार्ज के कारण बात नहीं करते, जितने भी सिस्टम में सोर्स चार्जेस हैं सबके बारे में बात करते हैं। तभी तो मैंने बोला था कि अगर यूनिवर्स में सिर्फ एक पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा तो कैसा फील्ड लाइंस बनेगा, ऐसा बनेगा। एक अगर निगेटिव एग्जिस्ट करेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप का। मतलब आप समझो कि ऐसे, ये वाला, अरे यहाँ वाला, समझ रहे हो ना कि ऐसा टाइप का बनेगा, राइट। लेकिन जब दोनों साथ में एग्जिस्ट कर जा रहा है तो कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि भैया ये बोल रहा है कि मैं तो अपना ऐसे रेडियली आउटवर्ड रखूंगा, मैं बोल रहा हूं कि ये इसको रेडियली इनवर्ड रखूंगा। अब मेरे को यहाँ पे जो आएगा वो ई रिजल्टेंट आएगा, और ये ई रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, हमेशा किसके होना चाहिए, यहाँ अगर फील्ड लाइंस पास होंगे तो उसके टैंजेंशियल होना चाहिए। तो वही तो मैंने बोला यहाँ पे, तो इसी के लिए कभी भी इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ गया सबको ये प्रॉपर्टीज? यस सर। देखो यहाँ पे वही वाली बात है कि नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस होते हैं पर यूनिट एरिया, वो क्या करते हैं, अब से यही हो जाते हैं कि मैग्नीट्यूड बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर एक चीज देखना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एरिया को हम लेके आगे बढ़े जा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस एरिया से लाइंस क्या हो रहे हैं, कम पास हो रहे हैं, फील्ड लाइंस कम होते जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे अगर मैं गया था तो सबसे ज्यादा थे, इसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। पहले तो आपको मैंने क्या बोल दिया कि भैया तुम अपने सोर्स चार्ज को बना दिए, ठीक है, उस सोर्स चार्ज से आप अपने मन से पहले ड्रॉ कर लो कितने लाइंस लेने, वो आपका चॉइस था। आपने बोला कि ठीक है कि मैं ये एक सोर्स चार्ज लेता हूँ, चलो ये पॉइंट चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके लिए जो फील्ड लाइंस आएगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। मैं 4 लाइंस बनाता हूँ, 4 नहीं, चलो आप बोल दो 8 बना लेते हैं। ठीक है, 8 बना दिए। अब उसके बाद बनाने के बाद आप छोड़ दोगे। अब क्या करोगे, बोल रहे हो कि इस देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया ले रहा हूं अगर ऐसा वाला, तो यहाँ पे भी 2 पास हो रहा है, सेम इसको फिर एरिया को मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा कहाँ तक, इस जगह पे। तो यहाँ पे देख रहे हो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कम, मतलब हो ही नहीं रहा है कोई फील्ड लाइंस पास, ठीक है। तो आपने तो एक लिमिटेड ड्रॉ किया था, होते तो फील्ड लाइंस और भी होंगे, सारे कुछ होंगे। तो यानी इससे हम क्या इंफॉर्मेशन
इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर दो लाइन पास हो रहे हैं तो यानी इस पॉइंट के पास इस एरिया का जो भी पॉइंट होगा, जिस भी पॉइंट के बारे में बात कर रहे होंगे, एक्चुअली में ये डिफरेंशियल एरिया होता है, बहुत छोटा एरिया होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फील्ड लाइंस अगर दो पास हो रहे हैं और यहाँ पे 0 पास हो रहे हैं, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पॉइंट के पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इस पॉइंट के पास। कह सकते हो कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि Yes, sir. फील्ड लाइंस के हेल्प से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे जब आप फ्लक्स पढ़ने जाओगे ना, द रेट ऑफ फ्लो, उसमें आपको ये सब हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। और इस चीजों को मैं बाद में कभी होता है क्लासेस के बाद, आफ्टर द क्लासेस वाले सीन होते हैं ना जहाँ पे, तो उस चीजों में हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये चीज याद रखना कि जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर पास करेंगे उस एरिया से, अगर उसी एरिया को फिर दूसरी जगह ले जाके देखते हैं तो वहां से अगर कम पास हो रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वहां का जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम ये दिखाते हैं फील्ड लाइंस, ये पैरेलल फील्ड लाइंस किसके होते हैं? याद करो कैसे वाले में देखा था आपने? क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने देखा था क्या कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फील्ड लाइंस बनता था वो कैसा बनता था? कुछ ऐसा पैरेलल बनते थे कि नहीं? हालांकि यहाँ पे जो होता था इस पोर्शंस में कहा जाता है कि इस पोर्शंस में ऐसे नहीं बनते, यहाँ पे परफेक्टली पैरेलल नहीं होते एंड पे, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हम एंड वाले को उतना नहीं वैल्यू दे रहे हैं। हम हर चीज को किस में कर रहे हैं, कोई बड़ा सा प्लेट है और उसके मिड पॉइंट पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होते फील्ड लाइंस, कैसे होते पैरेलल होते हैं, राइट? समझ रहे हो? तो अगर इसमें अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो वो क्या करेगा, फील्ड लाइंस को क्या करेगा, डेविएट कर देता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर देता है, बाहर की ओर रिपेल कर देगा। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज बोलेगा आ जाओ मेरे अंदर। ठीक है, यस सर। ये समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज क्या कहता है, कहता है कि चलो जाओ तुम स्केप टू इंफिनिटी हो जाओ तुम। और ये क्या कहता है निगेटिव वाला, कि मेरे अंदर आ जाओ। ठीक है, तो ये चीजें कुछ कुछ हमने जो बात की वो फील्ड लाइंस के बारे में बात की। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब जो हम एक और चीज आती है जो होती है शील्डिंग। अगर मान लो कि अगर हम मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखते हैं तो क्या होता होगा? अगर हम मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखते हैं तो पहले मेटल ऐसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन अपने डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे भी चल रहा है अपना अपना अंदर में जैसा भी है वैसे रखे हुए, न्यूट्रल। अभी कुछ अभी अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे, तो अभी मेटल ऐसा दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैंने फील्ड लाइंस के अंदर ले आया तो क्या हुआ, इनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया कि अंदर में कोई भी फील्ड अब बहने नहीं देगा। ये कैसे भैया? मैं ऐसे बताता हूं। आपके पास पहले वाला एक्सटर्नल फील्ड लाइंस कैसे था? अभी मेटल को जिसमें आप ला के रखे हो, जो एक्सटर्नल फील्ड में ला के रखे हो, ये पहले ऐसे था, राइट? अब क्या किया आपने, उसके जगह मेटल ले आए। अब मेटल के क्या होती है एक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वो क्या कहता है कि ये पोर्शन, ये स्पेस मेटल के अंदर पड़ रहा है, तो मैं इसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस होने ही नहीं दूंगा, नहीं करने दूंगा इसको। तो कैसे करोगे? तो बोलता है कि ठीक है कि मैं अपने आप को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि अगर मान लो कि ये फील्ड लाइन अगर ऐसे बन रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो मैं एक अपोजिट फील्ड लाइंस ड्रॉ करवा लूंगा सच दैट कि इसके इस चीज को कैंसिल आउट कर दे और अंदर में फील्ड क्या हो जाए, सारी वैल्यूज क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यानी अंदर में क्या हो गई, फील्ड उसको रहने ही नहीं देता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार के आपको क्या हो गया, शील्डिंग हुआ कि नहीं, उसने बचा दिया कि नहीं आपको? यस सर। यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा रहता है, सपोज करो कि इसके अंदर एक अंदर हॉलो बना देता हूं मैं, ठीक है, हॉलो स्पेस है, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज है पार्टिकल रहेगा ना, तो वो एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि वो कह दिएगा कि एक्सटर्नल फील्ड तो है लेकिन वो मेटल के अंदर रखा हुआ है, जिस कारण से उसको क्या हुआ, शील्डिंग मिली है। शील्डिंग मतलब एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, उस कारण से हमेशा याद रखना कि मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ अगर यही पे अगर मेटल के जगह यही एक्सटर्नल फील्ड है, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है तो एक्सटर्नल फील्ड है तो उसका अपना फील्ड लाइंस भी होगा। मान लेते हैं कि इसके फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर मैं इंसुलेटर ले आता हूं यहाँ पे, तो क्या इसके अंदर स्पेस में जो होगा वो उसके अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगे? बताओ। अगर इंसुलेटर है तो क्या एग्जिस्ट करेंगे? तो आंसर है हाँ, करेंगे। सिर्फ मेटल होगा तब नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि मेटल क्या करता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो जितना आपने जो एक्सटर्नल फील्ड से जो फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे आ रही है ना, उसके सेम वैल्यू और अपोजिट इन डायरेक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। कैसे? उसके फ्री उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इंसुलेटर के अंदर नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है। जब मैंने आपको डायलेक्ट्रिक्स पढ़ाया था तो क्या आपको बताया था इंसुलेटर कैसे करते हैं काम? अपने अंदर के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसको अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर ये चीजों को अपने आप की जो पोलरिटी होती है ना, इसके जो डिस्टेंस होते हैं ना, इसके सेंटर्स के पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करके अपने आप को क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको रेसिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाते। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक क्षमता तक ही कर पाते हैं, तो उसको रिड्यूस तो कर देते हैं लेकिन जीरो नहीं कर पाते। लेकिन मेटल इसमें कर पाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन करके बताओ। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी सारे लोग लिखो, सारे लोग लिखो इसका आंसर। सारे लोग आंसर जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, लोगों का सी ज्यादातर आ रहा है। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि बहुतों का सी आ रहा है। चलो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अभी तक जो फील्ड लाइंस हमने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने स्टडी किया है। ये क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस जो है ये क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, क्यू जो जो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, जो पोजीशन है उस पोजीशन पे जाके ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं सारे फील्ड लाइन। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसमें भी सर। सेम चीज हो रहे हैं, Q2 पे भी जाके हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, Q1 और Q2 के बारे में क्या मालूम चल रहा है कि वो निगेटिव चार्ज होंगे, राइट? तभी तो वहां जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये दो निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, निगेटिव है और निगेटिव है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये फील्ड लाइंस हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस चीज को आइडिया रखना है आपके पास कि ऐसे हो, ऐसे बन सकते हैं। हाँ, जब बन जाएंगे तो उसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। कैसे जस्टिफाई करोगे? चलो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं, इस पॉइंट पे ये ले लेते हैं। इसके पास अगर मैं जो ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर Q1 के कारण कैसा बनेगा,
अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो क्या इसके तरफ एक वेक्टर बनेगा? ये क्या होगा? E एट मान लेते हैं A, तो E एट A ड्यू टू Q1 बोल सकते हैं ना। और यहाँ पे Q2 के कारण क्या होगा? ये बनेगा, लेकिन इसका लेंथ छोटा होगा क्या? हाँ होगा छोटा, क्योंकि ये दूर है। इसका ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, तो क्या इसका जो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो इनके हमेशा बीच में होता है? तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो इस पॉइंट पे इस फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल है? यस सर। तो देख रहे हो आप, जस्टिफाई कर पा रहे हो ना चीजों को? यस सर। यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने बनाया तो अच्छा, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? Q1 के कारण यहाँ पे ये फील्ड होगा, Q2 के कारण यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होगा। तो यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लाइन जो बन रही है, ये जो यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो नेट ई बन रहा होगा, ई नेट जिससे कहते हैं, वो क्या होगा? समेशन ऑफ बोथ के कारण किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? इसको मान लेते हैं बी, तो ई एट बी ड्यू टू Q1 प्लस ई एट बी ड्यू टू Q2, उन दोनों का क्या होगा? वेक्टोरियल वेक्टर एडिशन होगा। तो वो जो नेट आएगा, वो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो फील्ड लाइंस की क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। तो क्या वो टेंजेंशियल यहाँ पे बन रहा है क्या? यस सर। तो यानी ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हो ना कि फील्ड लाइंस ऐसा बन सकता है। आपको कोई उठा के अगर मैं बोल दूं कि चलो अगर ये फील्ड लाइंस होगा, चलो इसके ऐसे होंगे फील्ड लाइंस, ऐसे होंगे फील्ड लाइंस, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? इस पॉइंट पे लेते हैं, इसके अबाउट तो ये आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया फील्ड, इसके अबाउट यहाँ आ रहा है, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आएगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा पड़ेगा। तो क्या ये जो ई का जो नेट ई आ रहा है, ये वेक्टर यानी ये एरो वेक्टर, मतलब एरो समझ लो, क्या इस जो लाइंस हमने जो ड्रॉ कर रखी फील्ड लाइंस के, उसके टेंजेंशियल है क्या? नो सर। नहीं है, तो ऐसा लाइन फील्ड लाइंस नहीं हो सकता भैया। समझ में आ गया? यस सर। यानी आप जस्टिफाई कर सकते हो चीजों को, आपको मालूम होगा पहले से कि फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं उसके कारण, लेकिन आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक रैशनल वे होगा हमारे समझने का, सोचने का। ठीक है, देखते हैं। देखो फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आके Q1 Q2 पे जाके क्या कर रही हैं? टर्मिनेट कर रही हैं। तो टर्मिनेट कर रही हैं तो यानी दोनों नेगेटिव चार्ज होगा, तो इससे आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ये देखो आपने एक नीट का क्वेश्चन कर लिया, आपको मार्क्स भी मिल गए। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें करते रहोगे। मैं सबको बोल रहा हूं कि जिसको भी, ठीक है, प्री बोर्ड्स के भी आप देख रहे होगे, वो सब चीज आप तैयारी करो, लेकिन एक एक थोड़ा सा टाइम निकाल के आपसे एक मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, जिसमें कहो कि यार चलो अभी मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन आधा घंटा क्या नहीं दे सकते हो क्या? आधा घंटा दिया करो। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर के बस 2016 से स्टार्ट कर दो और उसी के क्वेश्चंस कर दो। आपको जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि उसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपको हमेशा। तो ये चीज को रखो हमेशा अप्रोच। ठीक है, यस सर। सारे लोग आ गए समझ में? अब हो गया? और कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो बेटा।